Morning, everyone. We are we have studied the examples of the applications of your isomerism. We'll do more examples on that in future. We just proceed with reaction mechanism here, and we'll define some basic terms. You can say or transition state intermediates, and which we already studied in your chemical kinetics. Just go through it. So if I say what is reaction mechanism, it is a hypothetical sequence of events in a reaction which leads to product. Which leads to product. Hypothetical means what? Imaginary. So whatever the steps we are writing, that is not given by the reaction. We have imagined that in this way the reaction is proceed. The reaction is taking place in this steps. Just like if you talk about acid catalyzed analyzation. First, what happened? H plus added to O, then we have drawn the resonating structures, and H is shifted from carbon to shifted to carbon. If you talk about base catalyzation, in base catalyzation, the base took the H from the alpha carbon, and that negative charge is delocalized, and after that, it again accepted the H plus. So whatever the steps we are writing, we are just imagining कि हाँ ऐसे होता होगा. We are assuming कि ऐसे होता होगा. By doing experiments, by changing the concentration of reactants and products, by changing the conditions of a reaction, temperature, pressure, by using catalyst. So what are the effect on a reaction by using different external factors? We concluded that this is the best possible reaction. This is the best possible steps through which the reaction will proceed. That is very, very important. So if you say, in this first, types of reaction, we already know this because we have already studied in chemical kinetics. We'll not go in detail, just quote it here. Types of reaction. क्या क्या होते हैं? Single step और order of single step किसके इक्वल होता है? बोलो. Molecularity. Molecularity की इक्वल होती है. Very good. What is molecularity? Single step reaction or elementary step reaction. And second is multiple step, multi-step. Multi-step का और क्या नाम था? Complex. और उसका दूसरा नाम और एक क्या था? Simple. So reactions which involve single step are known as elementary or single step reaction. तो next definition आप खुद से mention कर सकते हैं, which involves more than one step. High energetic species involved in a reaction are known as transition state
and intermediates. Now transition state is what? Imaginary, but intermediates are what? Real. The energy of an intermediate or transition state is higher than, जब सिंगल स्टेप में होगा तो इंटरमीडिएट होगा क्या, बताइए. एनीवन? नहीं. नहीं होगा. सिंगल स्टेप होगा तो इंटरमीडिएट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होगा. तो ईच स्टेप इज हैविंग एसोसिएटेड विद व्हाट? ईच स्टेप is associated with one transition state. Each step of a reaction is associated with transition state generally. Now, what is TS? Chemical species corresponding to potential energy maxima in energy profile diagram of reaction is known as TS. जिस तरह से मैकेनिज्म हमारा इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, तो टीएस भी हाइपोथेटिकल है. वी इमेजिन व्हाट की इन सच वे द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग.
एग्जैक्ट बॉन्डिंग ऑफ टीएस इज नॉट नोन, क्योंकि इमेजिनरी है, सिंपल। देखिए 5 पॉइंट्स गॉल कर लीजिए। केमिकल स्पीशीज विच correspond to potential energy maxima in energy profile diagram are known as TS. It is not real and can never be isolated. Only one TS is present. Only one TS is present in an elementary reaction. In complex reaction, more than one TS are present. More than one TS are present. TS may have partially broken or partially formed bond. Exact bonding of TS is unknown. Covalency rule may or may not be followed in TS. TS lasts only for one molecular vibration, and any attempt to do any structural change in TS result in more stable arrangement. तो recall करना, आप शायद physics में पढ़े होंगे, stable and unstable equilibrium. यहाँ पे कोई बॉल डाल दिया, यहाँ बॉल डाल दिया, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है? राइट वाला। सेकंड। बट फर्स्ट वाला क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? बिकॉज जरा सा इसको हिट करोगे किधर शिफ्ट हो जाएगी? जो स्टेबल अरेंजमेंट है, जो टीएस की पोजीशन इट इज सिमिलर टू दिस फर्स्ट वन। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसकी तरह है, जरा सा हिट करोगे, जरा सा उसको पुश करोगे तो वो क्या हो जाएगा? जो स्टेबल अरेंजमेंट है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। आज का सबसे बड़ा जो टूल सीख रहे हैं वो सीखिए। हेमंड्स पोस्टुलेट। हेमंड्स पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? assumption।
postulates of kinetic theory of gas, मतलब assumptions in kinetic theory of gas, जो हमने मान लिया कि हाँ ऐसा होता होगा. Hammond's postulate will help you in many reactions to explain something related to reaction or characteristic of reaction. ये क्या कहता है ये कहता है कि जो टीएस है उसके बारे में बताना मुश्किल है, उसमें पार्शली ब्रोकन बॉन्ड है, पार्शली फाउंड बॉन्ड है, कोवलेंसी बताना मुश्किल है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है वो. बट अगर गौर करूं, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन करूंगा या स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा, मॉलिक्यूल रिएक्शन का रेट के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो टीएस चाहिए. टीएस तो सबसे ज्यादा ऊंचा वाला पोजीशन होता है. इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दी टीएस, और टीएस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ये कहते हैं कि जो उसका नियरेस्ट नेबर है, टीएस विल बी सिमिलर टू दैट. टीएस के बॉन्डिंग को समझाना मुश्किल है, वो किससे मैच करता है? अपने नियरेस्ट नेबर से मैच करता है. इन एनी रिएक्शन टीएस इज structurally believed to be similar to its nearest neighbor. आप कहते हैं कि टीएस के बारे में नहीं बता सकते और उसके नेबर के बारे में बता सकते हैं. नेबर बताना मतलब क्या? वो वैली में रहेगा, बॉटम पे रहेगा, डाउन में रहेगा. नियरेस्ट नेबर एंड any factor or you can say any structural feature any structural feature which can stabilize स्ट्रक्चरल फीचर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? कौन बताएगा? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जीओसी की बात कर रहे हैं. पूरा जीओसी चैप्टर आ जाएगा. नियरेस्ट नेबर is expected to stabilize transition state and vice versa. ठीक है. कहता है कि टीएस के बारे में बताना मुश्किल है, पर टीएस के जो बगल में नेबर है उसके बारे में तो बता सकते हैं आप, और उसके बारे में बता सकते हैं. इसका मतलब हुआ टीएस के बारे में भी आप बता पाएंगे. अब जो नियरेस्ट नेबर होगी वो रियल स्पीशीज होती है. वो रियल स्पीशीज क्या क्या हो सकता है? वो इंटरमीडिएट हो सकता है, वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब इस पे आते हैं, फिर से रिटर्न बैक होंगे इस पर. नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट्स. अब इंटरमीडिएट्स के बारे में तुमने एग्जांपल ही कर लिया है कई सारे. रियल केमिकल स्पीशीज, formed in between the reaction intermediates can be trapped
or isolated or stored. These are also unstable and सर हाँ वो उसके लिए जगह छोड़नी है क्या? कहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा ना अभी, इंटरमीडिएट एग्जाम्पल। मैं 3 रिएक्शन कराऊंगा, तीनों रिएक्शन से रिलेटेड आप बहुत कुछ सीख जाएंगे अभी भी। केमिकल काइनेटिक्स सीख जाएंगे, मैकेनिज्म भी सीख जाएंगे, और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। बट एग्जाम्पल दूंगा और रियल एग्जाम्पल दूंगा, सो दैट आप उसमें 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप सब सीख लें। कैन बी ट्रैप्ड और आइसोलेटेड और स्टोर्ड। स्टोर्ड हम तभी कर पाएंगे जब इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा, जैसे ट्रोपिलियम आयन। हाईली स्टेबल। स्टोर करने का मतलब क्या है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है नो पार्शियली ब्रोकन और formed bonds in intermediate. Covalency rule is applicable. Bonding in intermediate are cleared clearly defined no intermediates are present in elementary reaction. No intermediates are present in elementary reaction. In two-step reaction, बताइए सब लोग, in two-step reaction कितने कितने TS, two transition state and one intermediate. Intermediates are not seen in overall reaction. Rate law of overall reaction does not involve what? Intermediate. याद है कन्वर्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम से? केमिकल काइनेटिक्स में कन्वर्ट किया था ना। ओवरऑल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट किया था? बाय यूजिंग केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर सबको? Yes. है ना? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सिंगल स्टेप रिएक्शन का।
देखिएगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप लिख रहा हूँ, इसका नाम E2 देते हैं। E2 आपको समझ में आएगा, नाम क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज अ बेस, B माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, L माइनस है, वो लिखेंगे तो बाद में लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, लीविंग ग्रुप। क्या हुआ, देखो क्या क्या हो रहा है, गौर करिए, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक, ये बॉन्ड टूटेगा तो सी पे क्या चार्ज आएगी, प्लस, और उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अच्छा, जो सी एच बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं वो कैसा स्टेप है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेप है, बिकॉज अगर Cl का बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो सी पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या, कार्बोटन में क्या शो होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला सी एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और डबल बॉन्ड बन रहा है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट यू विल गेट, बताइए, दिस, साथ में क्या बनेगा, BH, साथ में क्या बनेगा, L माइनस, तो L माइनस क्या था, लिविंग ग्रुप था, और ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, अल्कीन फॉर्म हुआ। E2 क्यों लिखते हैं, सिंगल स्टेप लिख दिया, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बताओ, बताते जाना बेटा, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बोलो, कुछ टफ पूछ रहा हूँ, टफ नहीं पूछता मैं क्लास में, आप लोग होमवर्क नहीं करते इसलिए वो टफ होता है। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, 2 अगर 2 कर रहे हैं पार्टिसिपेट तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 2, ऑर्डर क्या होगा, 2 रेट लॉ क्या होगा, बोलो, रेट लॉ क्या होगा, 1 रेट 1 1 1 हो जाएगा। तो क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे, इसको लिखते हैं RL जैसा, ठीक है, शॉर्टकट, इसको लिख बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, और जो बेस है उसको हम लोग रिएजेंट बोल देते हैं, बेस क्या हमारा, रिएजेंट, और E2 का फुल फॉर्म होगा एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर, why बायमॉलिक्यूलर, बिकॉज मोलिकुलरिटी इज व्हाट, 2, रेट इक्वल टू लिखेंगे K RL, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेस का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों रेस टू 1। हमने डायरेक्टली क्यों लिख दिया बेटा, ऑर्डर ऑर्डर 1 1, बिकॉज हमें सिंगल स्टेप पता था, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 2। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में डिफरेंस क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब श्रेया, जैसे मान लो मुझे अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, जैसे हमने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, अल्केन से अल्काइल हैलाइड, तो अल्केन हमारा सबस्ट्रेट हुआ, मतलब जिसपे हम काम करना चाहते हैं, जो बनाते हैं वो हो गया प्रोडक्ट। शायद मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया क्या, उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है, यहीं पे कुछ कर लेते हैं। तो सबस्ट्रेट का मतलब हुआ जिसपे हम कुछ करके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो अल्केन से हम क्या बनाना चाहते हैं, अल्काइल हैलाइड यूजिंग Cl2H। तो जो Cl2 है वो क्या हो गया, रिएजेंट, और जो हमारा अल्केन था वो क्या हो गया, सबस्ट्रेट। तो बेसिकली बोथ आर रिएक्टेंट्स, तो reactants are divided into two parts, one is substrate, one is reagent. The one on which we are going to do some changes, that is substrate, by which we are going to do the changes, that is reagent.
Clear है श्रेयस? Yes, sir. Both are reactant. Both are what? बोलो, reactant. Substrates and reagents are reactant. ये स्टेप समझ में आई? बताइए, ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? ये रिएक्शन डेफिनेटली एग्जांपल वी हैव टेकन व्हाट? एलिमिनेशन. कैसा एग्जांपल लिया हमने? एलिमिनेशन. E2 रिएक्शन ही पढ़ लिया, इतना ही होता है E2. TS कैसा होगा इसका? ड्रॉ द TS. TS ऑफ अबव रिएक्शन, जिसको ऐसे बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं, तुमने लास्ट में लिख दिया. TS कैसा होगा इसका बताइए. तो TS will be like this. TS तो बीच में बनेंगे ना, तो TS will be like, जो जो बॉन्ड टूट रहा है. TS का मतलब बड़ा आसान है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है कि नहीं? वैसे ही टाइम पास क्या होता है? TS. L पे क्या चार्ज आ रही है? डेल्टा माइनस. C पे क्या चार्ज आ रही थी? प्लस. पर प्लस न्यूट्रलाइज भी हो गया साइमल्टेनियसली. H पे डेल्टा प्लस आ रहा था, पर नेगेटिव ने अटैक कर दिया, तो इफेक्टिवली नेगेटिव कहाँ का रहेगा? सिर्फ बोलो. हेलो, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना बताइए. अच्छा मुझे बताओ, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी H और L को कहाँ होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी H और L को आपस में किस पोजीशन पे होनी चाहिए? फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी H and L should be in anti-periplanar. एंटी-पेरिप्लेनर पता है किसको बोलते थे? एंटी-पेरिप्लेनर. ऑपोजिट है. एंटी कन्फर्मेशन को और एंटी कन्फर्मेशन. एंटी कन्फर्मेशन. तो इस TS को भी बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट. एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट. एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको. क्लियर है? कितने आइटम मैक्सिमम प्लेन पे होंगे बताइए, जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं? तो L. अच्छा हाँ, एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो जिसपे L लगा हुआ है, L क्या है? लिविंग ग्रुप है, उसको हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं. और जहाँ पे C लगा हुआ, H लगा, उसको नाम देते हैं बीटा. तो अल्फा और बीटा से क्या निकला? H और L निकला, जिसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. तो ये अल्फा बीटा. तो कौन कौन से आइटम इसमें स्टेबल हैं सेम प्लेन पे बताइए? L का आइटम है ना, अल्फा कार्बन, बताइए, बीटा कार्बन, H एंड बेस आर इन सेम प्लेन. सोचो ना, अगर आप इसका इसी मॉलिक्यूल का सॉहर्स या न्यूमैन बनाओगे तो कैसा न्यूमैन बनेगा? सोचो, ऐसा होगा, होगा ना? ये L होगा, ये H होगा, इसको कौन ले जाएगा? बेस ले जाएगा. ऐसा ही बनेगा ना, डॉट 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 से. डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस. दिस इज आर. अब खुद सोचो, यहाँ सामने दिख रहा है
एल कार्बन, उसके पीछे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, फिर बेस। बेस भी क्या होगा, सेम लाइन में ही होगा, एंगल पे नहीं होगा। एंगल पे होगा तो इनमें रिपल्शन होगी। व्हाई इट इज ऑन द सेम लाइन, सेम प्लेन पे क्यों है? क्योंकि अगर बेस नीचे होते, अगर मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे होता और बेस यहाँ से निकालता, तो एल और बेस में क्या होती, बोलो? रिपल्शन होती कि नहीं, बताओ? एल के पास नेगेटिव चार्ज, बेस के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो हमेशा वो अपोजिट से ही निकलते हैं। तो E2 जब भी कराओगे, H और L को कहाँ रखोगे, बोलो बताइए, H और L को कहाँ रखेंगे? एंटी। एंटी। अब मुझे बताओ, फिर इसका डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा E2 खत्म हो गया, समझने के लिए E2 खत्म हो गया। अभी रेट के लिए हम हेमंड्स पोस्टुलेट यूज करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, व्हाटएवर। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे पता श्रेयस? 2 सिग्मा टूटे और 1 पाई 1 सिग्मा बना। वेरी गुड। कितना आसान आंसर था श्रेयस, था ना? बताओ। हाँ, ऐसा ही चीज हमने कहाँ पढ़ा था, हीट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H फॉर above reaction is what, positive। तो हम लोग कह सकते हैं कि elimination reactions are, elimination reactions are endothermic in nature, कह सकते हैं श्रेयस? हाँ, ठीक है, ये हो गया। डेल्टा एस पे कमेंट करिए। अब डेल्टा एस आप नहीं बता पाएंगे, हम बताते हैं, आप समझ जाएंगे। स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बताइए, कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल से बाद में कितने पार्टिकल बने, 3 पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, बढ़ेगी। सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, सॉलिड को बिखेर दीजिए आप। बिखेर का मतलब क्या हुआ, लिक्विड में बदल दीजिए, गैस में बदल दीजिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इधर उधर भागने वाले। व्हाट विल हैपन टू द डेल्टा एस, पॉजिटिव, एज यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 पार्टिकल्स आई एम गेटिंग व्हाट, दीदी 3 पार्टिकल्स। एक मिनट, रूम शिफ्ट करो। तो 2 पार्टिकल से 3 पार्टिकल्स अगर रिएक्शन में बनेगा, यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गई, पॉजिटिव। नाउ डेल्टा जी का फॉर्मूला बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये बताया था हाँ हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बताओ श्रेयस, डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। और टी क्या होती है, पॉजिटिव। मैं कांस्टेंट लिख लूं, पॉजिटिव।
तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए, टू बी नेगेटिव क्या करिएगा, डेल्टा दोनों ही पॉजिटिव है, तो टू बी नेगेटिव डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन व्हाट, T del है ना? हेलो, इट मींस टी शुड बी व्हाट, लोअर और हायर? higher. Higher. It means elimination reactions are डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस, है ना? डेल्टा जी नेगेटिव के लिए क्या होती है, बोलो? स्पॉन्टेनियस. टू बी नेगेटिव और टू बी स्पॉन्टेनियस, it should be negative from this. So therefore elimination reactions are favored at, बोलो, हाई टेम्परेचर. और वैसे भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर होता है. यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, बताइए सब कुछ. डेल्टा एच पॉजिटिव कर दिया हमने, तो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर E2 रिएक्शन. E2 नाम क्यों है बताओ? E2 नाम क्यों है बताइए? E से एलिमिनेशन हो गई और दो E से क्या हो molecule. गया? Biomolecular. बायोमोलिकुलर हो गया. अगर 2 स्टेप में होते तो स्लोएस्ट स्टेप का मोलिकुलरिटी लेते. ग्राफ कैसी होगी इसकी? Parabola. ऐसा होगा. और रिएक्टेंट का लेवल क्या होगा बेटा, डाउन, प्रोडक्ट का लेवल ऊपर. टीएस तो यहाँ पे होगा. कुछ पूछना है? ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, है ना? अब खुद सोचो, मैं चाहता हूँ रेट बढ़ाना. अगर मैं रेट बढ़ाना चाहूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करूंगा. ये सब पढ़ाया था ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिव एनर्जी बैकवर्ड, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, से पढ़ाया ना श्रेयस? हाँ. ये सब जरूरत नहीं है. मुझे बताइए, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. अच्छा बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी है मुझे, तो एनर्जी ऑफ टीएस अगर कम कर दूं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. कोई डाउट? एनर्जी ऑफ टीएस का दूसरा नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. अब एनर्जी ऑफ टीएस कैसे कम करोगे, उसकी तो बॉन्डिंग ही नहीं पता मुझे. पता है क्या आपको बॉन्डिंग? टीएस को समझाना मुश्किल है ना, पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड ऐसा अजीब सा है, तो उसको क्या समझेंगे? तो फिर हम टीएस को किसकी तरह लेंगे? नेबर की तरह. नेबर की तरह. अब टीएस किसकी तरह दिखेगा जरा बताओ तो? टीएस रिएक्टेंट की तरह दिखेगा या टीएस प्रोडक्ट की तरह दिखेगा, बताइए? प्रोडक्ट में क्या है, अल्कीन. तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अल्कीन, बेटा पूरा E2 ही खत्म हो गया मजाक में, समझ रहे हो? मैंने स्टार्ट भी नहीं किया. स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अल्कीन अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ टीएस भी क्या होगा श्रेयस? एनर्जी ऑफ टीएस क्या होगा बेटा, कम, है ना? समझ में आ रही है? बताइए, ये समझेंगे तो कुछ दम नहीं है किसी चीज में. और चैप्टर समझने वाला है और हर जगह यूज होगा. टीएस भी क्या होगी, कम होगी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी.
रेट क्या होगी ज्यादा। ये समझ में आया श्रेयस? वो प्रोडक्ट की तरफ क्यों है सर? क्या बेटा? प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्यों होगा उसका? बताओ, वही तो होममेड्स पोस्टुलेट है। प्रोडक्ट की स्टेबल, जो टीएस है सिमिलर टू व्हाट? टीएस resembles its nearest, बताइए, नेबर। तो अगर अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा तो टीएस किसकी तरह है? अल्कीन जैसा ही है ना। नियरेस्ट TS मतलब एनर्जी में नियरेस्ट ना? नियरेस्ट मतलब जो नजदीक है। अब एनर्जी छोड़ो, तो नजदीक कौन दिख रहा था बताओ टीएस पे? बताओ, नजदीक कौन दिख रहा है तुम्हें? जो आसान है वही समझना है श्रेयस, टफ नहीं समझना है कुछ। नजदीक तुम्हें कौन दिख रहा है बताओ? एनर्जी छोड़ दो, तुमको नजदीक दिख कौन रहा है? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट? प्रोडक्ट दिख रहा है तो वही नियरेस्ट हो गया। या जिसका एनर्जी क्या है, आसपास है। ये भी आप अब जो जो आपने टर्म यूज किया, और नजदीक दिख कौन रहा है? प्रोडक्ट दिख रहा है। प्रोडक्ट में क्या है? अल्कीन है। तो टीएस की जो प्रॉपर्टी, टीएस का हमने बनाया भी स्ट्रक्चर, टीएस कैसा दिख रहा है? अल्कीन जैसा दिख भी रहा है। पार्शली ब्रोकन बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, कॉन बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, बीच में डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो चुका है। तो टीएस की प्रॉपर्टी किसकी तरह दिखेगी? अल्कीन की तरह दिखेगी। एनी डाउट? बोलो। नो सर। नाउ तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए मत कुछ प्लीज, रिक्वेस्ट है, पहले समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कंपेयर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। बेटा E2 रिएक्शन खत्म हो गया, बस वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है वो जानना होगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा। कंपेयर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। एल का मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। रफ में करिए, करिए। One greater than two greater than three. वन में तो E2 होगा ही नहीं, उनमें E2 होगा क्या बताओ? E2 होने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट दो तो कार्बन चाहिए, है ना। हाँ फिर हाँ 432 होगा ना? 432 और वन में तो होगा ही नहीं। कैसे बता, आपको कैसे किया? मैं तो हमने तो नहीं समझाया। हाइपर कॉन्जुगेशन से वो उसका अल्कीन स्टेबल हो जाता मतलब मैंने तो नहीं बताया, लेकिन से मैंने बताया क्या कैसे क्या? करना है? बिल्कुल नहीं बताया, बस हमने ये बताया, समझाया आपको सिर्फ। किस रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम हमने बना लिया। टीएस किसकी तरह दिख रहा है? प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है। प्रोडक्ट स्टेबल होगा, हेलो, प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो टीएस भी स्टेबल होगा, टीएस स्टेबल होगा तो रेट ज्यादा होगी, ठीक है ना। हेलो, हाँ। ठीक है। तुम क्या करेंगे, दोनों का अब क्या बना लेंगे? अल्कीन बना लेंगे, दोनों से अल्कीन बना लेंगे। डायरेक्टली बना लें। जो एल है वो क्या, उसका कार्बन क्या है? अल्फा, बगल में क्या है? बीटा। तो डबल बॉन्ड क्या बनेगा? दिस। ये जो अल्फा, ये क्या है? बीटा। दिस एच को निकाल दीजिए, एच को निकाल दीजिए। ये अल्फा, ये बीटा। बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन, है ना।
अल्फा से क्या निकालना है? लिविंग ग्रुप। किस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा? लास्ट लास्ट। 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर 10। अच्छा, ये कैसा अल्काइल है? 3 डिग्री अल्काइल। 3 डिग्री है ना? 3 डिग्री अल्काइल सबस्ट्रेट, 3 डिग्री अल्काइल सबस्ट्रेट। दिस इज, ये कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री। ये कौन सी है? 2 डिग्री। ये कौन सी है? 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्काइल सबस्ट्रेट, 1 डिग्री अल्काइल सबस्ट्रेट। तो अगर मैं रेट ऑफ E2 की बात करूं तो सिंपली क्या हो जाएगा बताइए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर डिफरेंट हुआ तो। नीचे में सभी क्या है? सभी 1 डिग्री है ना? एल जिस पोजीशन पे लगा हुआ है वो कार्बन क्या है? ऑल द अल्फा कार्बन आर व्हाट? 1 डिग्री। यहाँ पे 10। हमें करनी क्या है? लिविंग ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है, बगल में बीटा कार्बन है, उससे आप 10। और यहाँ पे तो एलिमिनेशन नो E2, क्योंकि बीटा पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है। दिस इज अल्फा एंड बीटा। बीटा कार्बन has no hydrogen or no beta hydrogen is present. अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो लिख दिया मैंने। इसमें किसकी रेट ज्यादा होगी? थर्ड वाले की। थर्ड वाले की, है ना? और ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, मतलब जीरो हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी। अंडरस्टूड? बताओ, बोलो। हेलो, हाँ सर। हाँ एनी डाउट किसी को? देखिए, remarks, it is a single step. Remarks for E2 reaction, it is a single step reaction in which separation of living group from alpha carbon. Alpha is always with respect toward living group. NH from beta carbon takes place in same step. Second point, kinetics of E2 के ऊपर लिख चुके हैं वैसे हम लोग। मोलिकुलरिटी क्या थी? 2। ऑर्डर क्या था? 2। रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू K RL रेस टू 1 और बेस रेस टू 1। नाउ अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे RL का रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे बेस का तो बढ़ेगा रेट। थर्ड, ट्रांजिशन स्टेट, जो मैं समझा सब लिख रहे हैं। डेल्टा माइनस 10, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट।
In transition state, CC bond between alpha carbon and beta carbon has partial double bond, character similar to what? Double bond in product alkene. Therefore, stability of TS is proportional to stability of what? Alkene. TS is nearest neighbor of alkene. Reactivity in E2, reactivity का मतलब rate is proportional to stability of product alkene. ठीक है, क्लियर? और फोर्थ चीज इन जनरल तुम सबके लिए आप लोग वही करोगे. फोर्थ, एनर्जेटिक्स इन E2, जो ग्राफ ऊपर बनाई है हमने वही ग्राफ बना देंगे वहां पे. समझ चुके हैं सारे, सिर्फ एक स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी है. क्या स्टेटमेंट तुमने दिया था श्रेयस? Since two sigma bonds are broken. and one sigma and one pi are formed, overall reaction is what? बोलो, endothermic. Overall reaction is, बताइए, endothermic. Therefore, alkene possess higher energy. यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ भी बोलो. No, sir. फिफ्थ, स्टीरियोकेमिस्ट्री. देखो आ गया हमारा आइसोमेरिज्म. हर जगह जब भी कुछ डिफिकल्ट वाली पार्ट होगी या समझने वाली पार्ट होगी वहां पर आइसोमेरिज्म में खेलने के लिए आएगा. The hydrogen atom at beta carbon, हमने अभी लिविंग ग्रुप के ऊपर कमेंट नहीं किया. कमेंट नहीं किया, समझ गए ना? लिविंग ग्रुप क्या होती है, क्यों होती है, वो सब नहीं. लिविंग ग्रुप नेक्स्ट क्लास में लिविंग ग्रुप डिस्कस करेंगे. लिविंग ग्रुप एट किस पोजीशन पे था? व्हाट इज लिविंग ग्रुप हियर? एल अल्फा कार्बन must be in anti-conformation. Must be in what? Anti-conformation during attack of base. That is, TS is anti-periplanar
बस। आप उसको सॉहर्स डायग्राम में बना सकते हैं, आप उसको न्यूमन में बना सकते हैं। अब देख लो ये क्या है हमारा L, ये हमारा क्या है मान लीजिए H। H को कौन ले गया, बेस, या बेस अटैक करा देते हैं, बेस और विल अटैक हियर साइमल्टेनियसली निकलेगा। इसका सॉहर्स डायग्राम कैसा होगा बताइए, ऐसा होगा सॉहर्स डायग्राम। एनी डाउट किसी को? बस इसका टीएस कैसा होगा, लिविंग ग्रुप टूट रहा है, अलग हो रहा है। H को भी कौन लेके जा रहा है, बेस। डेल्टा माइनस, और रिमेनिंग पोजीशन तो चेंज नहीं किया मैंने किसी का कुछ ऐसा। सॉर्स क्या होगा इसका, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ, करिएगा फट से। ऐसा ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस। अब ऊपर जो डबल बॉन्ड बन रहा था वो दिखेगा क्या बताओ, न्यूमन में दिखेगा, न्यूमन में, न्यूमन में डबल बॉन्ड बनता दिखेगा क्या, हेलो? नहीं। और सॉहर्स में दिखेगा। और sp3 से sp2 की तरफ टेंडेंसी हो रही है, धीरे धीरे वो प्लेनर बनता जाएगा। हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा, और यहाँ पे this, कि फाइनली क्या होगा, ये तो टीएस बना दिया मैंने, है ना? ये तो टीएस बना दिया मैंने। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा। इसमें फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। बिना आइसो के आप कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डन, ये सबको क्लियर है, क्लियर है सबको? Now what would I do? I will put some groups on this. क्या करता हूँ, ये इसको लेके जा रहा था, यहाँ पे यहाँ निकल रहा है, सिमिलरली ये इसको लेके सर जा रहा था। न्यूमैन ने डबल बॉन्ड भी दिखा, मतलब डबल बॉन्ड दिखेगा कैसे, दिखेगा क्या डबल बॉन्ड, बताओ ना। तो वो प्रोडक्ट हम ऐसा बना सकते हैं क्या? अरे वो तो न्यूमैन। समझने के लिए, प्रोडक्ट तो हाँ। अल्किन बनाओगे ना, प्रोडक्ट तो आप नॉर्मल अल्किन बनाओगे ना बेटा। अल्किन क्या होती है, ऐसा कैसे कैसे वो रीच किया है वहां तक, बना सकते हो, गलत कुछ नहीं है, पर वो वैसा पूछेंगे नहीं ना, आपको ऑप्शन देंगे वो अल्किन बना के। इसी को अगर आप फ्रंट से देखोगे तो डबल बॉन्ड दिखेगा क्या बताओ, बताइए, फिर बोलो। नहीं। नहीं दिखेगा, तो बना दिया मैंने, वो तो समझने के लिए है। फाइनली बनाएंगे तो अल्कीन है ऑब्वियसली। अब क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स लगा रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे लगा दिया ए बी, हमारा एच और एल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई ग्रुप क्या मतलब है, सी डी। फ्रंट से देखेंगे तो ये क्या है, डी ई कर देते हैं ना, ई, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, सेम है सिचुएशन। फिर से ये डी ई बी ए, है ना? फाइनली फिर डी, जो लेफ्ट था वो लेफ्ट रह गया, जो राइट था वो राइट रह गया, यहाँ पे जो लेफ्ट था वो लेफ्ट रह गया, जो राइट है वो राइट रह गया। बट आज बहुत बड़ी चीज पढ़ा है हमने, बहुत बड़ी। डन, समझिए अच्छे से पहले।
अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इस समय काफी टाइम लगेगा. You just solve one question in front of me using such concepts, तो जाके आपको ये पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा. तो एग्जांपल्स के साथ करेंगे तब तो ये आपके दिमाग में सेट हो नहीं है. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. फाइंड प्रोडक्ट. सिर्फ रफ में क्वेश्चन सॉल्व करिए. HBRPH. एंटी का मतलब अपोजिट. एंटी का मतलब क्या था? एंटी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट. और क्या बोल सकते हैं? ट्रांस. ट्रांस बोल सकते हैं. बट यहाँ पे ट्रांस सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता. ओपन चेन है. सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल. BR इज अ लिविंग ग्रुप. और देखो मैं दो चीजें एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं लिखता हूँ अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? BR इज व्हाट? मैं बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चन नहीं पर हम BR क्या है सर? BR क्या है? लिविंग ग्रुप. अल्कोहलिक KOH acts as, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस. तो बी मतलब वो बी है. अल्कोहलिक KOH जब भी लिखा रहेगा वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? E2 ही एक्सपेक्ट करेंगे. क्लियर है? हेलो. Yes. हाँ सर. जब भी देखो आज दिमाग में क्या सेट हुआ कि हेलोजेंस क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप होते हैं. गुड तो नहीं, लिविंग ग्रुप होते हैं फिलहाल तो. बिकॉज लिविंग एबिलिटी पे मैं समझाऊंगा अलग से क्लास में. अल्कोहलिक KOH क्या डिनोट कर रहा है? बेस डिनोट कर रहा है. तो अल्कोहलिक KOH बेस हो गया. BR लिविंग ग्रुप हो गया. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज है ऊपर जैसा. क्या समझते हैं? क्लियर है यहाँ तक? नहीं बताइए. हेलो. यहाँ तक क्लियर है ना? Yes. हाँ सर. एक क्वेश्चन करके दिखाइए. रफ में क्वेश्चन करके दिखाइए. मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ. और एक क्वेश्चन कर लिया तो सब क्वेश्चन एक जैसा ही है. कॉपी पेस्ट है. और फिर शॉर्टकट ही बताऊंगा. और शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा जब तक आप पूरे क्वेश्चन कर नहीं लेते. क्वेश्चन लिख लीजिए. आराम से करिए टाइम लेके. बेटा E2 ही खत्म हो गई. मजाक में. मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे स्टार्ट करूंगा. पूरा नया ही तरह से आपका टीचिंग हुआ है. श्रेयस, कहीं भी किसी भी जगह पे दिक्कत आई है समझने में? नहीं. पक्का? कोई तकलीफ नहीं है? हाँ. काइनेटिक्स समझ यूज कर. काइनेटिक्स पढ़ने का फायदा हुआ कि नहीं बताओ? हाँ. इसलिए पढ़ाना पड़ा है. कहीं कहीं भी काइनेटिक्स नहीं हुई है. किसी भी बैच में नहीं हुई काइनेटिक्स. तो काइनेटिक्स समझ में डिटेल्स में आती भी है. इसको अप्लाई भी करते हैं. अभी आपके जो दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ उसमें करंट पढ़ा रहा हूँ. उसकी रिकॉर्डिंग डाली भी मैंने. करिए सॉल्व. बेटा हर क्वेश्चन एक जैसा है. एक क्वेश्चन कर लिया तो सब एक ही जैसा क्वेश्चन है.
फर्स्ट हुआ श्रेयस। मैंने एक छोटी सी बात नहीं बताई है इसमें, बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली वो समझना पड़ेगा। हाँ मत बोलना, है ना श्रेयस? वो करने के बाद ही तो कर पाएंगे ना सारा काम ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं बोलना है कुछ, वो समझने सब समझ जाएंगे वैसे तो। अब मैं अगर वो भी बोल देता तो क्वेश्चन कोई दम होता क्या क्वेश्चन में? नहीं। कुछ भी नहीं होता। तो देखते हैं कितना सोचते हैं, करते हैं। पूछता हूँ पहले लोग क्या कर रहे हैं। सिद्धांत क्या कर रहे हो सबसे पहले? सिद्धांत हाँ सर। क्या स्टेप लिया आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले? ये नहीं बताते हैं तो अगला 2 क्लास नहीं लूंगा मैं। अगर आप इसमें रिवाइज करेंगे नोट्स को तभी हम आगे पढ़ाएंगे, भले आपके टेस्ट में 0 मार्क्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में? खुशी बोलो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? खुशी हो सेशन में? हेलो, सर BR और CSP का एक्सचेंज फिर CSP और CH का exchange। सबसे पहला काम क्या होगा? फर्स्ट वर्क क्या होगी हमारी? ऊपर का डायग्राम और नीचे के क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहला काम क्या होगा? इतना पूछना ही हिंट है बेटा, इतना पूछना ही हिंट है। H और BR को ऑपोजिट रखना है। कैसे रखेंगे? वो तो डेफिनेटली एच एंड बी आर शुड बी अपोजिट, कैसे रखेंगे? अरे बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। By shifting PH and H हाँ equal to CH और H में एक exchange फिर H और PH में एक exchange। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, सुपर गलत। आयुष बोलो। इवन एक्सचेंज कर। सबसे पहला काम श्रेयस, देखो कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोलूं? नहीं, तुम्हें नहीं बोलना है, मैं जानता हूँ तुम बोल दोगे, फट से बोल दोगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है और नीचे का स्ट्रक्चर में अगर नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं रिलेशन, तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले किस तरह का प्रोजेक्शन दिया हुआ है? क्वेश्चन में किस तरह का प्रोजेक्शन दिया हुआ है? श्रेयस तुम कुछ नहीं बोलोगे, तीर्थ कुछ नहीं बोलोगे, मुंह बंद रखोगे सब लोग, और मैं नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप होमवर्क में समझिए। जो मेरा डाउट है हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन, डेफिनेटली मुझे ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, तो ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, और फाइनली ऐसा तो ऐसा ऐसा मिल जाएगा। श्रेयस आंसर क्या है बताओ पहले, क्या? आंसर निकाले श्रेयस? हाँ क्या मिला प्रोडक्ट में? सिस ट्रांस क्या मिला? 30 मिला। सिस मिला पक्का? हाँ ठीक है, मतलब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बन जाएगा ना? हाँ। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में दम होगा क्या? किसी क्वेश्चन में नहीं। रहने दीजिए फिर, अब आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीवन। आप घर पे सोचिएगा कि क्या ऐसा सर, क्यों हम हमें छोड़ दिया इस बीच में। रीजियो सिलेक्टिविटी और नोट्स पढ़ के आइएगा आइसोमेरिज्म का इन E2 रिएक्शन। रीजियो सिलेक्टिव नाम पहले समझिए, नाम क्या नाम लिखा है? रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो का मतलब रीजन वर्ड आया है, सिलेक्टिविटी का मतलब सिलेक्शन आया है। ठीक है, डेफिनेशन हम समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इतना फास्ट टॉपिक, कोई टॉपिक श्रेयस आज तक नहीं हुआ था, और इतना रिफाइंड फॉर्म में। रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, those reactions
in which आज आपने एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा, in which more than one structural isomer more specific position isomers, more than one structural isomer of the product can be formed out of which one is major का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, and others are minor। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनेंगे जो पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, वैसे रिएक्शंस को रेडियोसेलेक्टिव कहते हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, अलग अलग जगह पर अटैक हुआ, अलग अलग पॉइंट बने और एक पॉइंट ज्यादा बन गया किसी कारण से। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लगा देता हूँ BR नहीं लगाता हूँ, लिविंग ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप। और हम करा लेते हैं E2। अब मुझे बताइए अल्फा पोजीशन तो ये है, बीटा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे बीटा है, तो कितने पॉइंट्स बनेंगे श्रेयस? 2 बनेंगे। एक मैं राइट वाला बीटा ले लेता हूँ तो 2 बना देता हूँ, एक बन जाएगा उसमें, और प्लस दूसरा क्या बना लूं, दिस। एनी डाउट बताइए? No, इन दोनों में कौन स्टेबल है? लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला। क्यों? ज्यादा हाइपर कौन? वही एक भी चीज नया पढ़ रहे हैं बताओ, समझने के टाइम पे श्रेयस बताओ, नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं श्रेयस। रिएक्शंस का नाम नया आएगा पर कॉन्सेप्ट्स कभी नया नहीं आएगा। बॉन्ड वही बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड फॉर्म करना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, स्टेरिक हिंड्रेंस, वही टाइम पास चलता रहेगा। तो अगर आपकी वो दोनों टॉपिक स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज गो थ्रू इट, लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि आपके बैच को जितनी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाई गई है, जितने एग्जांपल्स कराए गए थे, उतने आज तक हमने नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन था ऑप्शंस। थोड़ा हम आपके यहाँ पे लिख लेते थे तो उसको कहीं और यूज कर लेते थे, क्योंकि यही सबसे स्ट्रैटेजी थी अच्छी वाली। तो उसको फायदा उठाइए, प्लीज फायदा उठाइए। ये क्या होगा बताओ? मोर स्टेबल। ये क्या होगा? लेस स्टेबल। जरूरी नहीं है कि जो मोर स्टेबल होगा वही मेजर होगा, ठीक है। जो मोर स्टेबल है उसको हम लोग कहते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट, लेकिन मैक्सिमम केस में सेट-जेफ क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको कहते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। विल नॉट राइट द डिटेल्स, सिंपल ये समझिए, ये कौन सी कार्बन है, ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री। ये कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री। ये क्या है? लेसर डिग्री। ये क्या है? हायर डिग्री। हायर डिग्री से H का निकलना क्या कहलाएगा? सेट-जेफ। क्लियर? लेसर डिग्री से बोलो, लेसर डिग्री से H का निकलना क्या कहलाएगा? हॉफमैन। लेसर डिग्री से H का निकलना कहलाएगा
हॉफमैन, और हायर डिग्री से h का निकलना कहलाएगा, बोलो बोलो, सेटजेव। सेटजेव भी कह सकते हैं इसको, एक और नाम है इसका, कुछ भी नाम दे दीजिए, सब रशियन नाम है, जेटसेव। One will be major quantity. I will tell you how to decide it. लेकिन मैक्सिमम केस में जो स्टेबल प्रोडक्ट हैं वही बनते हैं लार्जर क्वांटिटी में। डन? यहाँ तो क्लियर है सब कुछ? श्रेयस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ सर। सर हम उसमें CH3 और BR को चेंज करेंगे, फिर BR और CH3 और BH को चेंज करेंगे, फिर नहीं, चेंज करनी नहीं है ना, वो एक्सचेंज तो आइडेंटिकल ही चेंज करनी ही नहीं है कुछ, पहला काम कुछ और है। तीर्थ बताओ, तुम्हें समझ में आया? तीर्थ बताओ। फिशर टू न्यूमैन। फिशर टू न्यूमैन करने के लिए पहले क्या बनाएंगे? न्यूमैन। कौन सा न्यूमैन बनाएंगे? एक्लिप्स बनाएंगे। समझ में आया? चमका सबको? ऊपर आपको स्टैगर्ड दिया हुआ है या न्यूमैन एक्लिप्स दिया हुआ है? बताइए। स्टैगर्ड। कैसा कॉन्फॉर्मेशन है ये? ये भी कैसा है? स्टैगर्ड। एंटी क्या होती है, स्टैगर्ड या एक्लिप्स? कहाँ कमेंट लिखा था बेटा? एंटी क्या होती है? स्टैगर्ड। तो फिशर से हम क्या बना सकते हैं? पहले एक्लिप्स से फिशर सीखा था, तो फिशर से एक्लिप्स सीखोगे, तो हम पहले फिशर से एक्लिप्स बनाएंगे, एक्लिप्स में रोटेट करके उसको स्टैगर्ड बनाएंगे, एच और बीआर को अपोजिट रखेंगे और निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना सब लोग? बताना ही पड़ गया, गलती से मैंने पूछ दिया तीर्थ से और तीर्थ ने चुपचाप बोल दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स करिएगा, सब कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एफ कॉपी पेस्ट नहीं है, एफ में थोड़ा चेंजेस है। अच्छा श्रेयस, कितने कार्य सेंटर है फर्स्ट में? 2 कार्य सेंटर है। अगर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों ही कार्य सेंटर हो, समझ रहे हो, तो जो प्रोडक्ट होगी वो सिस या ट्रांस में से एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे यहाँ पे देखना, वो अब ट्रांस मिला क्या पहले बताओ मुझे? ट्रांस तो नहीं मिला, पर यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों मिलेंगे। यहाँ पे सिस भी मिलेगा, ट्रांस, तो वो अल्फा कार्बन कायरल है पर बीटा नहीं है। जब अल्फा और बीटा दोनों ही कायरल हो तो आपको सिस या ट्रांस में से एक ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक सीखते हैं, इसके बाद ऐड नहीं करते इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज हैवी हो जाएगी। हमने E2 का सॉल्विंग पार्ट पूरा ही सीख लिया है, सिर्फ सीखना क्या है, लिविंग ग्रुप क्या होती है और बेस का कैटेगरी क्या क्या है, क्या क्या बेस हो सकता है, कब हॉफमैन होगा, कब सेटजेफ होगा, वो तो समझना है, सब कंडीशंस हैं। बट सॉल्विंग टेक्निक सीख ली हमने, यही करनी होती है घुमा फिरा के आपको। चलिए ठीक है, बीपीपी खत्म हो रहा है श्रेयस, आइसोमेरिज्म वाला? हाँ सर, पर वो बहुत बड़ा है। तो आराम से देखो, बड़ा क्या है, देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बड़े नहीं होते। ऑर्गेनिक इज नॉट फिजिकल या नॉट फिजिक्स और मैथ्स। आता रहेगा तो करते चले जाएंगे ना, कहीं कहीं रुकेंगे, कहीं कहीं फंसेंगे। परेशान होकर मत करो, यू डू इट एज अ प्रैक्टिस, आराम से करो, कंप्लीट करो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुमने फर्स्ट किया कि नहीं बताओ? अभी फर्स्ट में हेल्प किया मैंने क्या? ये इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे ना लोग। हाँ, तो थ्योरी कंप्लीटली क्लियर है नोट से, तो कोई चैप्टर का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे क्वेश्चन छूटे कैसे? कौन सा क्वेश्चन गलत हुए टेस्ट का? वो एक इनॉल वाला था, उसमें सिस ट्रांस को भी ये करना था। तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। जब भी ऑल पूछेंगे, मतलब ऑल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सब देखना है। गलतियां नहीं श्रेयस। तुम्हारे तीर्थ कहाँ गए थे मार्क्स टेस्ट में? सर इनॉल वाला और एक रॉन्ग गया था। दोनों क्वेश्चन भेजो, दोनों हाँ। भेजो तो स्क्रीनशॉट। हाँ ओके। सर कल भी यही कंटिन्यू करना है?